सारा कुछ हिंदी में आपको साइड में सुनते रहिएगा। और उन्होंने शुरुआत इससे की है कि 2014 के मई के महीने से एक ऐसी सरकार आई है भारत में जो कट्टरपंथी है, सांप्रदायिक है, और उसने क्या कुछ किया है वहां पे देखिए, सुनिए। India has been taken over by an extremist authoritarian regime headed by Prime Minister Narendra Modi since May 2014. Attempts are on to cover up the extreme degradation of the country and its democratic institutions under Modi to ensure that the international community as well as the Indian diaspora in the US keep the focus away from all that is wrong in the country. Right-wing Hindu groups in the US supporting Modi are not only infiltrating US politics at every level, including the Congress and the Senate, they are also striving to gain acceptance from the Hindu culture to keep up of the facade of all is well. As a born Hindu myself, living in the US, I feel compelled to reveal the larger game plan of not just the Indian government under Modi, but also its supporters here in the US. Prime Minister Modi is a product of the RSS, a right-wing paramilitary group inspired by the Nazis. The international wing of the RSS, the HSS, and its allies, including the World Hindu Council of America, Hindu American Foundation, Hindu Students Council, operating in several US universities supposedly to celebrate Hindu culture, are doing exactly the opposite. Modi and his ministers are using Hinduism to spread extreme hate against the minorities, whether it's Muslims, Christians, Sikhs, or Dalits. The hate is being perpetrated to enable his government to get away with mass-scale corruption and looting. 50 million Indians have been pushed into poverty since the COVID crisis, and the Modi government has no answer for them. Modi and his supporters propagate the Hindutva philosophy, which is nothing but saffron terror group not related to Hinduism at all. Modi supporters who have lived in the USA for decades are pushing the radical Hindutva agenda aggressively in every state and city in the US, not endorsed by most Hindus, especially in all Indians, a majority of them Hindus. The US needs to wake up to the prospect of harboring Hindutva without being aware of it. आपने सुना किस तरह की बातें कही गई? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये डंका बजना नहीं है बल्कि लंका लगना है। सीधा सीधा मिसेस नाडार ने अमेरिका के काउंसिल में ये खड़े होकर कहा है, चिंता जताई है कि भारत की जो सरकार है वो एक कट्टरपंथी सरकार है, वो तानाशाही सरकार है, उसने वहां सत्ता पे कब्जा कर लिया है और जिसका नेतृत्व वहां के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और ये तक इन्होंने कहा कि मोदी सरकार वहां पर संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से डिक्टेट करने की कोशिशें करती रहती है। बार बार ऐसे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं जिससे कि वो सांप्रदायिक संस्था जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अपनी सांप्रदायिकता को छिपाने के लिए उनका इस्तेमाल करे और उनके जरिए से एक नैरेटिव सेट करे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो कि भारत में कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, और फोकस मुद्दों से हट जाए। इस तरह का काम भारत सरकार कर रही है। उन्होंने ये तक उसमें कहा है कि वहां जो अमेरिका में आरएसएस के समर्थित और आरएसएस के जो संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सीधे सीधे नाम लिया है उन्होंने यहां पर राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया हुआ है। यहां अमेरिका के विश्वविद्यालयों के अंदर वो लोग अपने संगठन चलाते हैं और भारतीय त्योहार मनाने की आड़ में वो अपने सांप्रदायिकता के नैरेटिव को और एजेंडा को पुश करते हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आरोप है। और यहां तक के आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार सीधे सीधे तौर के ऊपर धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है, नफरतें फैलाती है। वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई, सिख, सब लोगों के खिलाफ ये सांप्रदायिकता का माहौल बनाते हैं ताकि ये भ्रष्टाचार कर सकें और भारत में ये लूट मचा सकें जो इनके मंत्री कर रहे हैं। आप सोचिए, इतिहास में कभी किसी सरकार को लेकर अमेरिका के अंदर ये बातें कही गई होंगी? अमेरिका के काउंसिल में इस तरह के आरोप लगे होंगे हम पे? मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी भी लगे होंगे। वाकई में जो लोग कहते हैं कि सब कुछ डंका बजने जैसी हालत है मोदी जी का और मोदी जी का वाहवाही हो रही है, उनको ये सारी स्पीचेस सुननी चाहिए जो यहाँ दबा दी जाती हैं। और उस स्पीकर ने, उस सदस्य ने, काउंसिल की मेंबर ने यही कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉइट करके ये नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि मुद्दे नहीं उठ पाए और बाहर तक कुछ नहीं आ पाए। उसने तो ये तक कह दिया कि ये मैं खुद, क्योंकि उन्होंने कहा मैं खुद हिंदू हूं लेकिन अमरीकी हूं, अमेरिका में पली बड़ी हूं, अमेरिका में पैदा हुई हूं, मैं
मजबूर हूं एक्सपोज करने के ऊपर, बेनकाब करने के लिए ऐसे सरकार का ऐसा एजेंडा जो कि कुछ नहीं है